These are skills we can take anywhere we go in life, no matter what we do. So either you modify your dreams or you magnify your skills. Good evening and Jai Jinendra to one and all present here. I, Jayati Shah, President Yuva Forum Platinum Nandurbar, would like to take this honor and greet a warm welcome to all our dignitaries, JSGN Biren Shah Sir, International Director, JSGIF from Pune, JSGN Mahavir Parekh Sir, International Director from Bijapur, JSGN Manish Shah Sir, International Director, JSGIF from Pune, JSGN Sachin Shah Sir, MRC Chairman from Nasik, JSGN Unmesh Karnawat Sir, MRC Chairman elect from Solapur, JSGN Hasmukh Jain Sir, MRC Vice Chairman from Pune, JSGN Pritish Tatir Sir, MRC Vice Chairman from Malegaon, JSGN Dilip Mehta Sir, MRC Vice Chairman from Pune, JSGN Amul Zaveri Sir, MRC Secretary from Pune, JSGN Sachin Doshi Sir, MRC Joint Secretary from Satara, JSGN Dilip Chorbele Sir, MRC Joint Secretary from Pune, JSGN Ketan Doshi Sir, MRC Treasurer from Gulbarga, JSGN Ashish Kumar Shah Sir, MRC Yuva Forum Committee Chairman and Vice Zone Coordinator for Pune Zone from Pune, JSGN Yuvraj Shah Sir, Yuva Forum Committee Chairman, JSGIF and Zone Coordinator, Pune Zone from Pune, JSGN Rajendra Sisodia Sir, Zone Coordinator, Aurangabad Malegaon Zone from Dhule, JSGN Sunit Parikh Sir, Zone Coordinator, Kolhapur Zone from Kolhapur, JSGN Rajendra Sanghvi Sir, Zone Coordinator, Solapur Bijapur Zone from Bijapur, JSGN Sumit Patwa Sir, Zone Coordinator, Nasik Zone from Nasik, JSGN Pinal Shamam, President Platinum Nandurbar from Nandurbar. Now moving ahead, a lamp doesn't speak, it introduced by its light. Achievers never expose themselves, but their achievement does. And what's more important is, achievers are not born talented, but they possess the I can do it attitude. There is a difference between interest and commitment. When you are interested in something, you do it only when it's convenient for you. But when you're committed to something, you do not accept any excuses, only result. It's an attitude. Kindness is more than deeds. It's an attitude, an expression, and look, a touch. It is anything that lifts another person. A personality of lamp and an achiever. A personality with positive attitude. A person of his commitments. A person with act of kindness. Yes, the wait is over. I am speaking about none other than our today's guest speaker, Mr. Tejas Shah. He is MD of Accord Equips Private Limited, India's leading camera rental and video production companies with offices in Mumbai, Pune, and Goa. Since its inception 25 years back, it has been the company's policy and vision to hire raw talent and upskill them. They turn this raw talented and even unskilled people into the trained technicians like cameraman, sound recordists, etc. His company, Accord Equips Private Limited, is the first company to go for rental tech, cameras, amongst many other moves. Along with being a MD of such a great company and institute, I said institute because he has made the company an institute too. Mr. Tejas Shah is a regular speaker at many important industry events. He also writes for film and broadcast technology magazines. And above doing all these things, he is a person with a golden heart. Thank you, Jai Jinendra. Thank you. Thank you, Jayati. Now I request our eminent speaker, Sri Tejas Bhai Shah.
to start the proceedings. Here, Mr. Tejas Bhai Shah. Thank you, Jain Social Group, the eminent members of Jain Social Group, and Jayati for this wonderful introduction, and more importantly, making me a part of this event. I think starting में आशीष भाई ने बोला कि 48 crore youth of India, okay, and I think that is quite a big number. Globally, we are the largest young population today, and they are saying in this decade, ये 10 साल में maximum जो वर्कफोर्स आएगा ग्लोबल वो इंडिया का होगा. अगर अपने इस वर्कफोर्स का अगर सही उपयोग करना है तो आई थिंक उनका स्किल या उनका हुनर अपने को देखना पड़ेगा. तो आई थिंक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग इसके बारे में बात करना. तो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस कॉन्वर्सेशन. वाइल पीपल से हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहिए या इंडस्ट्रियलाइजेशन चाहिए, वो सब इम्पोर्टेंट है, लेकिन द यूथ ऑफ इंडिया विल बिकम द पिलर ऑफ इंडिया ग्रोथ इन द कमिंग डिकेड. सो एज आई टेक व्हाट आई विल डू इज, मैंने एक छोटा सा प्रेजेंटेशन तैयार किया है, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और आई थिंक क्वेश्चन आंसर सेशन करना हो तो आई थिंक वी कैन डू टुवर्ड्स द एंड. और अगर बीच में कुछ डिस्कस करना है तो मोस्ट वेलकम टू स्टॉप मी एंड आस्क. No, sir, after your discussion, we will start the question and answer. Great. Yeah, please continue, sir. I will just get my presentation on. So, basically, I think as Jayati mentioned, Yes, a little yes, bit about us. Sorry? There, दिख रहा है ना? Yeah, we can. हाँ sir, दिख रहा है. So, before as I start this presentation, जैसे बताया कि one second, I am a part of the entertainment industry. तो मैंने एक स्लाइड रखा है जिसमें मेरे को एक क्वेश्चन पूछना है. हमें सब मालूम है यश चोपड़ा इज अ बिग फिल्म मेकर, उन्होंने बड़ी बड़ी फिल्में बनाई है, लेकिन वो क्या था, वो एक क्या स्पेशल चीज थी जिससे उनको 5 डिकेड या 50 साल तक कोई हिला नहीं पाया. वो इंडस्ट्री के किंग रहे हैं. इसका जवाब मैं दूंगा एंड में, जैसे अपना प्रेजेंटेशन खत्म होने के टाइम पे. तभी मैं आपको पूछूंगा कि आपको क्या लगता है क्यों सक्सेसफुल थे, और उसके बाद मैं मेरा एनालिसिस दूंगा. एज आई गो फर्दर, आई थिंक इफ यू आर टॉकिंग ऑफ स्किलिंग इंडिया, नो कॉन्वर्सेशन या कोई भी बात इसके ये एक एग्जाम्पल के बिना नहीं हो सकती मेरे ख्याल से. जसवंती बेन जिन्होंने लिज्जत को एक रूप दिया था, उन्होंने 80 रुपये से शुरू किया और 800 करोड़ तो लेके गए आज वो कंपनी को. लेकिन उन्होंने एक चीज प्रूव की दुनिया को कि इस जो सफर था उनका, उसमें उन्होंने दिखाया कि अगर आप एजुकेटेड ना हो या आपका फॉर्मल एजुकेशन ना हो, उसका मतलब नहीं कि आप अनस्किल्ड हो. आपका हुनर इज नॉट डिसाइडेड बाय एजुकेशन, इट इज डिसाइडेड बाय एटीट्यूड. अलॉन्ग दिस जर्नी इतने सालों में उन्हें 43,000 महिलाओं को अपने पैरों पे खड़ा करने का अवसर दिया. और आई थिंक जो उन्होंने दुनिया को दिखाया कि किस तरफ इंडिया का पावर है लेडीज में, और आज उनके पापड़ पूरी दुनिया में बिकते हैं. कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट इज, अभी अपना बात होने वाला है 15-20 मिनट, तो मैं थोड़ा अपने बारे में बताता हूँ. जयती ने काफी सारा ऑलरेडी बता दिया मेरे बारे में. So the only thing what I feel excited to share is, of course, we are 100 people, Bombay, Pune and Goa. I tell you the basic structure के अकॉर्ड से बनाई क्यों. मैं चाइल्डहुड से इस इंडस्ट्री में हूँ, और मैं देखता था जब मैं शूटिंग में जाता था तो स्टूडियोज में कैमरा सेटअप को बहुत टाइम लगता था. और आप देखोगे तो इंडियंस आर बेसिकली स्टोरी टेलर्स. हमें हर एक को एक कहानी है जो बोलना चाहते हैं, और लेकिन अपने पास वो टूल्स सामान नहीं है. एक कैमरा लेने जाओ, लाइट लेने जाओ, बहुत महंगा पड़ता था. तो लकीली जब मैंने इंजीनियरिंग खत्म की और मैं इस इंडस्ट्री में फिर से आया प्रोडक्शन में, तभी वही टाइम पे डिजिटल रिवॉल्यूशन चालू हुआ था. और मैं लकी था, मैं सही टाइम पे था और मैंने वो मौका लिया, और हम लोगों ने डिजिटल कैमराज भाड़े पे देना शुरू किए. वी वर द फर्स्ट पीपल टू रेंट आउट डिजिटल कैमराज. और एडवांटेज वो था कि आप डिजिटल कैमरा से शूट करना चाहते हो तो फटाफट शूट होती है और खर्चे भी कम लगते हैं.
आज आप देखो तो आप डिजिटल की टेक्नोलॉजी वहां पहुंच गई है कि आपका मोबाइल से भी आप फिल्म शूट कर सकते हैं। तो अगर आप में हुनर है और एटीट्यूड है, आई थिंक जयसी ने एक बार बोला कमिटमेंट एंड एटीट्यूड, अगर एटीट्यूड है तो आई थिंक देयर नोबडी हु कैन स्टॉप यू। Coming to the second point is, I think the important thing that Jayati mentioned also is about our vision and policy. जब मैंने शुरू किया एक आदमी था, आज 100 लोग हैं, but today also 80% of our manpower has come in raw. They've been upskilled and they become a part of the industry. Even now we take 10% unskilled labor every year and make them into skilled manpower. And we take pride in that because the industry, not only us, the industry also benefits. Now, as regarding हम लोग के clients, आप देखोगे यहाँ पे काफी सारे मल्टीनेशनल्स भी हैं, लेकिन मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि मल्टीनेशनल को लैंग्वेज या इंग्लिश से कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनको डिलीवरी से मतलब होती है। कोई भी कंपनी में जाओगे आप डिलीवर करोगे, उनको फिर लैंग्वेज का, आपको अगर इंग्लिश नहीं आती है तो भी वो लोग सपोर्ट करते हैं अगर उनका काम होता है तो। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है इवोल्यूशन या इनोवेशन। आई थिंक अकॉर्ड इक्विप एज अ कंपनी हम लोग ने जब शुरू किया और अभी हम जहाँ पहुंचे हैं, हम लोग ने इस सफर में काफी सारे इनोवेशन किए हैं। हम लोग ने पहले डिजिटल कैमरा लाए, लाइव स्ट्रीमिंग जो पहली बार इंडिया में हुआ कोई इंडस्ट्री में, हम लोग के थ्रू हुआ था। वर्चुअल रियलिटी जो कैमरा भाड़े पे देते हैं वो हम लोग ने शुरू किया। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज हो जाती है कि आप ना ही अपने कंपनी को आगे बढ़ाओ, पूरी इंडस्ट्री को एक फायदा होना चाहिए उसमें, तो ऑटोमेटिकली इंडस्ट्री को फायदा होगा तो आपको भी साथ में फायदा हो ही जाएगा। सिंस मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ा हूँ, मेरी कुछ आइडियाज जो है वो जो एम्प्लॉयमेंट हम लोग की इंडस्ट्री में होती है उसमें बेसिकली एक्सपेक्टेशन क्या है। हम लोग की इंडस्ट्री में इवेंट्स, मूवीज, वेडिंग्स, टेलीविजन सीरियल्स का हर एक का एक फिक्स्ड तारीख होती है कि इस तारीख इस टाइम पे रिलीज होगी। उसका मतलब है कि जो भी खत्म करना है उस टाइम के अंदर करना है। तो अपनी इंडस्ट्री में कभी भी टाइम की पाबंदी नहीं होती। पब्लिक 9 to 5 नहीं काम करता है, फुल लंबे घंटों या लॉन्ग आवर्स काम करते हैं तब तक प्रोजेक्ट खत्म ना हो। तो एक वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एटीट्यूड, इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होता है। और एटीट्यूड इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। और अगर एटीट्यूड सही है तो कोई दिखता नहीं है कि हिंदू है या मुस्लिम है या कहाँ से है, क्या पढ़ा है। जब तक वो काम ठीक से करता है, डिलीवरी करता है, वो खुशी से इस इंडस्ट्री में अपनी जगह ढूंढ लेता है। तीसरी बात हम लोग की इंडस्ट्री की इंपॉर्टेंट है, हम लोग की इंडस्ट्री में बहुत सारे फ्रीलांसर्स होते हैं, माने हर कुछ दिन में उनका प्रोजेक्ट चेंज हो जाता है। तो वो जरूरी होता है कि जो हर एक जो आदमी काम करता है वो समझ पाए कि हर कुछ दिन कुछ नए लोग आएंगे, कुछ नया एनवायरनमेंट आएगा और कुछ नई थिंकिंग आएगी। तो उनका माइंड ओपन होना चाहिए और अडेप्ट करना चाहिए कि कुछ भी नई एनवायरनमेंट चेंज भी होता है तो उन लोग उस एनवायरनमेंट में अपने आप को हैंडल कर पाए। मैं कुछ दिन पहले कुछ युवा से बात कर रहा था और एक जन ने बोला कि यार प्रॉब्लम है कि मैं करना तो चाहता हूँ लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास सामान भी नहीं है, मैं कैसे करूँ धंधा। तो मेरा एक ही पॉइंट था, यहाँ पे मैंने इस फ्रेम में 6 पॉइंट रखे हुए हैं। ये 6 पॉइंट के लिए ना ही पैसा चाहिए ना ही सामान चाहिए, इसके लिए खाली एटीट्यूड चाहिए। अगर आप ये एटीट्यूड रखते हो तो आपको ना ही आप एम्प्लॉयबल, या तो आपको काम तो तुरंत मिल ही जाएगा पर आपको वो कंपनी छोड़ेगी भी नहीं। तो जो एटीट्यूड है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इवन मोर देन मनी और टूल्स। जिस तरह मैं आप देखोगे तो इंडिया का जो वर्कफोर्स है आज का, वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा वर्कफोर्स है। 18 मिलियन पीपल दुनिया में इंडियन काम कर रहे हैं। एक दूसरा, इंडिया का जो फॉरेन रेमिटेंस इंडिया में फिर से आता है या जो अपने लोग पैसा इंडिया में भेजते हैं वो वर्ल्ड का हाईएस्ट अमाउंट है। इसका मतलब ये है कि अगर उन लोग पैसा ज्यादा भेजते हैं माने उन लोग कमा रहे हैं अच्छा। इंडियन वर्कफोर्स दैट मीन्स इज सक्सेसफुल इंटरनेशनली। और क्यों है इसका बहुत सिंपल रीजन है, हम इंडियंस हैं, हम लोग मल्टीटास्कर्स हैं।
हम लोग एक काम एक साथ में 2-3 काम कर सकते हैं। दूसरा, हम लोग का एक एटीट्यूड रहा है पहले से, अतिथि देव भव, माने आप गेस्ट हो, आप मेरे वहां आइए, मैं आपको कंफर्टेबल फील करूंगा और आपको जो चाहिए वो करके दे दूंगा। वो जो अपना एटीट्यूड है वो हमें बहुत काम आता है। हम लोग कस्टमर सेंट्रिक हो जाते हैं और सोल्यूशन ओरिएंटेड, माने जवाब ढूंढने में लग जाते हैं। और दूसरी अपनी बहुत ही इंपॉर्टेंट खासियत या अपनी बैकग्राउंड है, हम लोग एक एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है, एक फार्म इकोनॉमी है अपनी। और एक फार्मर क्या होता है, वो हार्ड वर्किंग होता है, उसमें पेशेंस होता है और वो अपने सामने चीजें बड़ी होते देखता है, सक्सेस। तो ये हार्ड वर्क और सक्सेस का कल्चर अपना फार्मिंग इकोनॉमी से आया है, विच इज फ्रॉम द रूरल इंडिया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है अपने लिए। तीसरा जो फर्क इंडिया और अब्रॉड में है, जो इंडियन अब्रॉड जाते हैं वो स्किल्ड होते हैं, और दूसरा उनकी कंपनियां वहां उन्हें अपस्किल भी करती है, उनका हुनर आगे बढ़ाती है। अभी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं शेयर करूंगा कि जो ग्लोबल सक्सेस हमें मिली है वो लोकली क्यों नहीं मिलती है। इसका एक बहुत ही बड़ा कारण है अपना वर्कफोर्स। आप देखोगे इस ग्राफ में ना, तो इंडियाज वर्कफोर्स इज लीस्ट स्किल्ड, ओनली 5% स्किलिंग इज देयर कंपेयर टू कंट्री लाइक कीनिया या जापान में 80% है, कीनिया में आप जाओगे तो मोर देन 90% इज स्किल्ड। अगर आप अपने आप को स्किल नहीं करोगे, हुनर है, एटीट्यूड सही है, उसके साथ में आप अपने आप को स्किल करो, अगर आप स्किल अपने को करोगे तो आपका वैल्यू, आपका आउटपुट, आपका अबिलिटी टू परफॉर्म बिकम बेटर और आप ज्यादा कमा सकते हो। तो यू आर अपलिफ्टिंग द नेशन एंड योर फैमिली। सेकेंड चैलेंज दैट इंडिया हैज इज अपना फीमेल वर्कफोर्स। इंडिया इज ऑलमोस्ट सबसे छोटा, मिनिमम वर्कफोर्स जो इंडिया का है वो लेडीज का इंडिया से है, अपने नीचे खाली पाकिस्तान है और अरब कंट्री है, माने मुस्लिम कंट्रीज है। तो इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी गिव अपॉर्चुनिटी टू अ वुमेन वर्कफोर्स। जसवंती बेन जो लिज्जत की थी, उन्होंने एक मौका दिया और काफी सारी लेडीज को अपलिफ्ट किया। ऐसे हमें बहुत सारी जसवंती बेन की जरूरत है टू अपलिफ्ट वुमेन मैन पावर। और एक सोचना है कि जब भी कोई बड़ी क्रांति आई है ना, इट इज बीन द वुमेन ऑफ इंडिया या लेडी होती है जो क्रांति लाती है। तो हमें उन्हें सपोर्ट करना है अगर अपने को आगे अपस्किल करना है अपने आप को। जब हम स्किल की बात कर रहे हैं तो कई टाइम हम सुनते हैं, जो कुछ लोग अपने पे दया खाते हैं, यार मैं कैसे करूं, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास कहाँ जाके सीखूं। आई थिंक वो कंप्लेन तो अभी तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर मुझे कुछ सीखना है ना तो मैं यूट्यूब पे जाके भी सीख सकता हूँ कि कोई भी वीडियो देखूंगा उसमें मुझे सिखा सकते हैं कि कैसे करना है। तो एक तो मैं यूट्यूब पे जा सकता हूँ, दूसरा मैं एक अप्रेंटिस बन सकता हूँ जहाँ पे मुझे उन लोग सिखाएंगे, उन लोग पैसा दे ना दे, कुछ पैसा भी दे देंगे और मैं सीखूंगा और आगे बढ़ूंगा। तो एक अपने पे अगेन ये फिर से आता है कि अगर मुझे आगे अपना हुनर बढ़ाना है तो कौन, कोई नहीं, खाली मैं हूं, मेरे खुद के पैर से मैं कर सकता हूँ ये। आई थिंक जैसे आई थिंक आशीष भाई ने स्टार्टिंग में बताया था कि स्किलिंग इज इंपॉर्टेंट एंड आई एम हैप्पी द गवर्नमेंट इज गिवन इट इंपॉर्टेंस। आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने कुछ नाम दिए हैं, ये लिस्ट छोटा है, आई एम श्योर के और बहुत सारी ऐसी एजेंसीज गवर्नमेंट की है विच इज सपोर्टिंग स्किलिंग इंडिया। अगर आप वहाँ जाओगे, ऑनलाइन भी ढूंढोगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज क्या है। उन लोग भी फ्री में सपोर्ट करते हैं या पेमेंट पे भी सपोर्ट करते हैं, लेकिन मौके हैं अगर आपको अपने आप को स्किल करना है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है वैसे स्टेट गवर्नमेंट भी अपना काम कर रही है। मैंने यहाँ खाली महाराष्ट्र का रखा है, लेकिन ऑल द स्टेट्स आर डूइंग। महाराष्ट्र में अगर आप जाओगे, ये 2-3 नाम लिखे हैं या और भी नाम मिलेंगे ऑनलाइन, तो आपका कई कोर्सेज या नॉलेज के जरिए हैं वहाँ पे अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए। और जो लोग बोलते हैं कि जिनके पास पैसा नहीं है उनके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जाओगे, एनजीओज हैं, जैसे रामकृष्ण मिशन से मैं बात कर रहा था कुछ दिन पहले, तो उन लोग तो जिसको कुछ सीखना है, कोई वोकेशन, उन लोग वहाँ बुलाते हैं, उनको रहने का शरण भी देते हैं, रहने के बाद उनको सिखाते हैं, सिखाने के जब सीख जाते हैं और जब रेडी होते हैं निकलने के लिए, तब उनको उनका सामान भी देते हैं। अगर मैं टेलरिंग का सीखा हूँ तो मेरे को सोइंग मशीन देंगे, कारपेंटरी सीखा हूँ तो मुझे उसका सामान देंगे। तो
पैसे ना होने के बावजूद भी आप अपने आप को स्किल कर सकते हैं। और अपनी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो इंडिया के सिवा किसी के पास नहीं, इज आर कम्युनिटी पावर। इफ योर कम्युनिटी सपोर्ट्स यू, आप कभी भी आगे बढ़ सकते हो। जैसे मैं देख रहा हूँ जैन सोशल ग्रुप इज ट्राइंग इज एफर्ट ऑफ गिविंग आइडिया हाउ टू स्किल देमसेल्फ। ऐसे हर एक कम्युनिटी अपना काम करनी चाहिए, या सपोर्ट मिलेगा तो क्यों नहीं बढ़ेंगे हम लोग आगे। ये कुछ एग्जांपल्स जो मैंने रखे हैं, दिस इज बेसिकली नॉट जस्ट प्योर एजुकेशन बट मोर वोकेशनल। दिस इज फॉर स्किलिंग इंडिया। जो बेसिक स्टैंडर्ड एजुकेशन, इंजीनियरिंग, सीए, एमबीए तो लोगों को मालूम ही होता है, लेकिन जो मैंने याद रखा है इज द थिंग विच मोस्ट पीपल डोंट नो। हैंडीकैप हो उनके लिए भी है अपॉर्चुनिटीज, जो पढ़े नहीं है उनके लिए भी अपॉर्चुनिटीज है, तो और जो पढ़े लिखे हैं उनके लिए तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। तो उसके बारे में मैं बात भी नहीं कर रहा, क्योंकि उनको ऑलरेडी मुझसे ज्यादा नॉलेज होगा इसके बारे में। और एक और जो इम्पोर्टेंट चीज है इस जमाने में, इस पहले कहते थे एक जनरेशन होता है 25 साल का जब आदमी में बदलाव आता है, अभी एक जनरेशन होता है 5 साल का जब टेक्नोलॉजी और आदमी बदल जाते हैं। जो आपने आज सीखा वो 5 साल बाद शायद वो काम ही ना आए आपको। तो बहुत जरूरी है कि अपने आप को अपस्किल करें या इवॉल्व करें। और कई लोग डरते हैं अपने आप को इवॉल्व करने, क्योंकि एक डर रहता है कि मैं कैसे सीखूंगा। अगर आप एक चीज समझोगे ना कि सोल्यूशन जो है वो तो सेम ही है, खाली जो जरिया था सोल्यूशन पे पहुंचने का वो बदल गया है। पहले मैं लेटर भेजता था 5 दिन लगते थे, अभी भी मैं लेटर ही भेजता हूँ, लेकिन वो 5 सेकंड में पहुंचता है। तो चेंज खाली हुआ है कि जो रास्ता था वो बदल गया है। अगर आप वो रास्ता समझोगे तो आप भी बदलाव इजीली ले पाओगे। और अभी मैं अपनी लास्ट स्लाइड पे पहुंचा हूँ। वहां पे मेरा जो मैंने एक स्टार्टिंग में फर्स्ट स्लाइड दी थी कि वो क्या कारण है जो यश चोपड़ा 50 साल तक सक्सेसफुल रहे। तो उनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज थी, उन्होंने स्टार्ट किया 1959, पहली फिल्म धूल का फूल, और अभी जो लास्ट फिल्म आई जब तक है जान, उसमें एक कॉमन चीज देखोगे, उनकी फिल्में कभी भी आउटडेटेड नहीं थी। आप जो फिल्म देखोगे वो एकदम टाइम के साथ आगे बढ़ती गई, वो भी अपने आप को अपस्किल करते रहे। कोई किसी को मालूम नहीं यश चोपड़ा कहाँ सीखे हैं, उन्होंने भी ऑन द जॉब सीखा, वो भी अप्रेंटिस रहे, वो भी असिस्टेंट करे, वो भी डायरेक्शन को स्कूल में जाके सीखे नहीं थे। उन्होंने जो भी सीखा इंडस्ट्री में आके सीखा, दिल से जान से मेहनत की और सक्सेसफुल हुए। तो आई थिंक इट इज अप टू ऑल ऑफ अस, अपने पे है कि किस तरह आगे बढ़ना है या और इंडिया को सक्सेसफुल बनाना है। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू जयती, यू कैन नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर सेशन। Thank you very much, Tejas bhai. Short and sweet presentation you have given. Now, how the Yuva will get benefited? That is the only question I have. And then we will start question and answer session, sir. Yeah, so for the Yuva to benefit themselves, first of all, luckily आज के जमाने में हर एक चीज जो अपने को चाहिए ना अपने हाथ में है। एक मोबाइल में आप ऐप पे जाइए और आप अपना धंधा चालू कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ, बहुत लोग बोलते हैं मेरे पास ऑफिस नहीं है। ऑफिस क्यों चाहिए? बॉम्बे में आओगे तो को वर्किंग स्पेस है, ओके, आपको एक टेबल मिलता है भाड़े पे 8,000 रुपये में, ओके। मेरे को सामान बेचना है तो क्यों दुकान चाहिए? मैं ऑनलाइन बेच सकता हूँ ना, मैं मेरी शॉप ऑनलाइन बना देता हूँ, मैं वहाँ 50 प्रोडक्ट रखता हूँ, तो मेरा ऑनलाइन सेल हो गया, ऑनलाइन पेमेंट हो गया। ऑफिस अगर मैं घर से काम करना, ऑफिस घर से चला सकता हूँ। तो अगर मुझे कुछ करना है तो वो मेरे पे है। अगर आप बोलते हो कि मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, अपॉर्चुनिटी तो बहुत है, इट्स अप टू यू, आप क्या पकड़ते हो अपॉर्चुनिटी। आई थिंक एंड हु बेटर देन यू आर टू यूज दिस अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल सर, बिल्कुल वही तो मैं कह रहा था आपको कि स्किल का जो अपील, आज का जो स्किल डे है, यूथ स्किल डे, उस दिन पे आपका मार्गदर्शन बहुत अच्छा रहा है। अभी मैं सबको विनती करता हूँ, क्वेश्चन आंसर जिनको भी पूछने आप पूछ सकते हैं। तेजस भाई is there to answer your queries. I think एक और पॉइंट है, बाय द क्वेश्चन कम, कई लोग मेरे को पहले बोलते थे कि यार ऐप कौन वापरेगा, मैं कैसे सीखूंगा। आई थिंक जो लास्ट ईयर का पैंडेमिक था ना,
उससे एक बहुत ही बड़ा फायदा इंडिया को वो हुआ है ना कि हर एक इंडिया का आदमी, बड़ा बूढ़ा यंग, सबने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना सीख लिया, और उससे सबने बैंकिंग ऑनलाइन करना सीख लिया, और उससे इतना बड़ा फर्क पड़ा है कि अब हर एक अपने को जो एक था कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत थी ना, वो ऑनलाइन मिल गया सबको। आई थिंक बहुत ही बदलाव आया। आई थिंक द एडवांटेज ऑफ द पैंडेमिक वाज पीपल गेटिंग डिजिटल। सो आई थिंक दैट इज द अपॉर्चुनिटी वी शुड टेक नाउ, especially for the youth. Jayti, you can start question and answer session, please. Hello, Jayti. Yes, sir. Yes, I am. Yes, sir. So, yeah, anyone has any questions, please go ahead, ask it, clear your queries. जैसे कि जयती, मैं पूछ सकता हूँ? जी सर, प्लीज। तेजस जी, जैसे आपने एक टैगलाइन दी थी, अपहील योर स्किल्स। हाँ, जनरली यूथ में क्या हो रहा है कि उनके जैसे एक होता है कि पहले क्या होता था कि मुझ में क्या है मुझे खुद पता नहीं होता था। हाँ, लेकिन अभी की जनरेशन जो है उनको पता है वेयर दे कैन गो, करेक्ट, हाउ टू फ्लाई। हाँ, बट उनको एक राइट डायरेक्शन अगर मिल जाती है तो वो अच्छी तरह इसके बारे में कुछ आप कह सकते हैं, कुछ लाइट? आई थिंक आपका पॉइंट वैलिड है। तो आई थिंक इंटरेस्टिंगली आप देखो अपनी क्रिकेट टीम को, आई गिव यू स्मॉल कनेक्शन। इंडियन क्रिकेट टीम जब गावस्कर था, वी वर वेरी डिफेंसिव। उसके बाद आया कपिल देव, जिसे पता ही नहीं था कि हारना जीतना क्या होता है। वो वर्ल्ड कप में गया, खेलने गया, मजा करने गया, उसने विवन रिचर्ड का कैच पकड़ लिया और हम लोग वर्ल्ड कप जीत गए। तो आई थिंक एटीट्यूड ऑफ कपिल देव वाज के बॉस आके जाके वहां खेलना है, जीत के आना है। तो आई थिंक ओवर द इयर्स वी हैव डेवलप्ड द कॉन्फिडेंस दैट यू सेड। फिर आया सौरव गांगुली, जिसने सामने जाके ललकारा, और अभी आया धोनी, जिसने बोला बस हम लोग यहाँ है, आप लोग को आना है, आइए। So I think that is what India is today. India is a confident bunch of youngsters. अभी आप जब बोलोगे कि डायरेक्शन चाहिए उनको, आई थिंक इट इज ओके। अगर आदमी मिस्टेक नहीं करेगा तो सीखेगा कैसे? सौरव गांगुली को ऑलमोस्ट टीम से निकाल गया था, और लकीली उसको फिर मौका मिला, इसलिए आगे निकला। अगर वो टीम से निकलता ही नहीं ना, तो वो ऐसा अच्छा कैप्टन बनता भी नहीं। सिद्धू को भी फेलियर मिला, तभी वो सक्सेसफुल प्लेयर बना। आई थिंक मार्गदर्शन क्या है? आई मीन एवरीबडी टुडे, अपने जमाने में क्या पढ़ाई थी? इंजीनियरिंग, मेडिसिन, लॉ, सीए, 4-5 चीज में खत्म होता था। टुडे द युवा हैज गॉट सो मच अपॉर्चुनिटी, 50 सब्जेक्ट्स हैं, तो उनको करने दो ना। मिस्टेक होगा तो क्या होगा? 1 साल बिगड़ेगा ना, उसके बाद तो उनको, जब मिस्टेक करेंगे तभी उनको मिलेगा ना सही 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 डायरेक्शन। तो आई थिंक ये मिस्टेक का क्या है ना, कि बहुत डिफिकल्ट है बोलना कि आपने गलत किया सही किया। वो तो हम लोग 1 साल के बाद ही बोल सकते हैं ना। अगर वो सक्सेसफुल हो गया तो बोलेंगे क्या गट्सी लड़का था, कोई नहीं कर रहा था, मैंने करके निकल गया। आई थिंक इट इज, यू शुड लेट पीपल मेक मिस्टेक्स। टुडे इज अ चांस टू मेक मिस्टेक। अब यूथ में मिस्टेक नहीं करोगे, कभी करोगे? बेटर वी मेक मिस्टेक नाउ। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। थैंक यू वेरी मच तेजस जी। जयती, ओवर टू यू। थैंक यू सर। हेलो जयती। यस सर। ओवर टू यू। If anybody wants to ask, or you know, so by the time the question comes, I will give you one more example. There is one website, okay, Shopify. I don't know कितने लोगों को Shopify मालूम है, okay? काफी लोगों को मालूम होगा। Shopify ले लो या ANS सिस्टम ले लो। Shopify इसलिए बोल रहा हूँ कि काफी फेमस है। उसमें अगर मेरा ऑनलाइन शॉप खोलना है, मुझे गिनो के नंदुरबार में या महाराष्ट्र के इंटीरियर में मेरी एक दुकान है, जहाँ पे मैं प्लास्टिक मैन्युफैक्चर करता हूँ और बेचता भी हूँ। लेकिन मैं क्यों खाली धुले में या नंदुरबार में बेचूं? अगर मैं शॉपिफाई में दुकान खोलता हूँ तो मेरे प्रोडक्ट्स सारे इंडिया या सारे वर्ल्ड में बिकेंगे। अब आप बोलोगे मैं ऑनलाइन कैसे करूँ, मैं सप्लाई कैसे करूँगा? तो शॉपिफाई आपको वो ऑप्शन भी देता है जहाँ पे उनके गोडाउन में आप सामान भेज के रखो। एक ही गोडाउन में सामान एक ही भेजना है, माने आपको खर्चे तो है, आपका एक स्टॉक अपनी खुद की दुकान में है, एक स्टॉक किसी और के गोडाउन में है, और वो लोग पूरी दुनिया में बेचेंगे या पूरा इंडिया में बेचेंगे, तो आपकी मार्केट तो बड़ी होगी ना। तो एक थोड़ा सा
वर्किंग कैपिटल इन्वेस्ट करके अगर मुझे एक नया धंधा मिलता है तो क्यों नहीं। तो आई थिंक अपने को समझना है कि अपने सामने इतनी अपॉर्चुनिटीज बैठी हुई है ना कि अपने को कैसे पकड़ना है, किससे बात करना है, ऑनलाइन में सोल्यूशन है वो लेने हैं। Thank you very much, sir. Thank you very much. Jayti, over to you. Yeah. Here I wanted to ask a question is that, as sir also said before, that we have a lot of skills and we are unknown to them. Correct. So like how would you say that we would like, ऐसा हम क्या करें कि जिसे हमें भी पता चले कि हम में कुछ है, या how do we evolve ourselves? Okay, so what I said is इंडिया का एटीट्यूड इज वन ऑफ के भाई जुगाड़ अपना। ओके, अपना एक अच्छा एटीट्यूड है विच इज के यार मेरे पास सामान भले कम हो, मैं कुछ ना कुछ करके दिखाना चाहता हूँ। तो मुझे मेरा हुनर कैसे मालूम पड़ेगा? अगर मैं घर से बाहर निकलूंगा ही नहीं तो मुझे पता ही नहीं बाहर कितना ट्रैफिक है। तो एक बार मैं निकलूंगा और एक बार रास्ता क्रॉस करूंगा, मुझे फिर मुझे पता चलेगा कि अच्छा मेरे को इस तरह काम करना है। तो हुनर तो हर एक में होता है ना। कोई आदमी ज्यादा काम करता है, कोई कम करता है। सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली दोनों ही स्टार प्लेयर थे जब आए थे। ओके, दोनों में इतना ही हुनर था। मतलब पब्लिक बोलता है, जो वो टाइम के लोग बोलते हैं कि विनोद कांबली वाज बेटर देन सचिन, बट सचिन ने ज्यादा मेहनत की, ज्यादा कमिटमेंट दिखाया, इसलिए उसका हुनर आगे निकला और कांबली का आगे नहीं बढ़ पाया। तो आई थिंक जब तक आप निकलोगे नहीं ना, वो मालूम ही नहीं पड़ेगा। आप घर पे बैठोगे तो कभी आपको मालूम है अपना हुनर क्या है। आई थिंक जो एक लाइन बोलते हैं ना लोग कि यार आई लव टू डू, अगर मुझे जो चीज की पसंद की है वो करना चाहता हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो चीज मिले वो पसंद करने का और दिल से काम करने का, तो सब हो जाता है। तो हुनर तो सब में है ना, तो दैट इज द वे आउट। थैंक यू। और सर मेरा एक सवाल था। हाँ, आई एम ऑडिबल? या यू आर। सर मेरा एक सवाल था, जैसे ये आपकी जो इंडस्ट्री है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, बहुत सारे एस्पायरिंग लोग रहते हैं जब युवा है, लेकिन कुछ कंस्टेंट उनको होते हैं। कुछ जोग्राफिकल कंस्टेंट होते हैं, या फाइनेंशियल कंस्टेंट होते हैं, या एक सपोर्ट का कंस्टेंट होता है। तो ऐसे लोगों को हम चुन के, या उनको अगर कोई सपोर्ट सिस्टम देख के, इनके लिए कुछ उनके अंदर वो है, स्किल है उनके अंदर, बट ड्यू टू दिस कंस्टेंट दे माइट नॉट गेट एक्सपोज टू दैट इंडस्ट्री, तो उसके बारे में हम कुछ कर सकते हैं? कर सकते हैं ना। पहली बात, अगर उसमें हुनर है ना तो उसको बोलो एक मोबाइल ले, और मोबाइल पे शूट करे, बराबर है। वो एक कहानी बोलना चाहता है ना, तो उसके लिए तो उसको मोबाइल पे कैमरा मिल गया, वो शूट करेगा, फिर मोबाइल पे उसको एक एडिटिंग ऐप मिल जाएगी। अगर उसमें हुनर है तो वो उसको कार्ड भी बराबर बना देगा, और उसके बाद वो यूट्यूब पे जाके वो वीडियो डाल देगा, बराबर। उसके लिए खर्चा नहीं लगता है, शूटिंग का खर्चा नहीं है, एडिटिंग का खर्चा नहीं है, म्यूजिक फ्री में मिलता है, यूट्यूब फ्री में मिलता है। आपने 15 लोग को इकट्ठा किया, उन्होंने एक फिल्म बनाई, उन्होंने यूट्यूब पे डाल दी, पब्लिक ने देखा। अगर उनका वो फिल्म अच्छी थी, उसमें हुनर है, अगर वो फिल्म खराब थी तो उनको और मेहनत करनी है हुनर बनाने में। ये हो गया एक पॉइंट। तो आपने अगर 50 जन को शॉर्टलिस्ट किया, उसमें से आपको पता चला ये 5 जन अच्छे हैं, ऑटोमेटिकली बिकॉज उसकी यूट्यूब वीडियो अच्छे हैं, तो उसे बॉम्बे जब आएगा ऑटोमेटिकली ये तो स्टोरी वो दिखा सकता है कि मैंने ये काम किया है और मेरा इतना व्यूअरशिप था, मुझे काम दे दीजिए। और इंडस्ट्री इतनी आगे बढ़ रही है आज, ओटीटी प्लेटफॉर्म, टेलीविजन, वीडियो ट्यूटोरियल्स, काम की कमी नहीं है। अगर मैं छोटे जगह में भी जाता हूँ ना, अगर मैं जहाँ पे कुछ सिखाना है मुझे, अपना एक गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव चालू किया था वेयर एजुकेशन ऑनलाइन। तो अगर मैं छोटे गांव में एक एग्रीकल्चर का भी दिखा दूं कि ये प्लांट को कैसे डालना है या ये चीज कैसे उगाई जाती है, उसके लिए वो कैमरा लेके वहां जाके शूट कर सकता है, और वो वीडियो अगर वो डालता है ऑनलाइन, अगर कुछ नया होगा तो दुनिया देखती है। तो दैट इज द वे आई थिंक यू कैन फाइंड टैलेंट, कि आप उनको एक मौका दो तो शूट करके लाओ, और अगर अच्छा है तो फिर बॉम्बे में हेल्प करेंगे, उसमें क्या है। अगर उनको बॉम्बे ही आना है तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप जब बोलोगे मुझे बॉम्बे ही जाना है तो आप काम नहीं कर पाओगे, पहले आप वहां तो करो। पहले के जमाने में नहीं था ना, अभी वहां तो करो पहले।
सर मुझे ये कहना था उसके साथ साथ ही रिगार्डलेस इस इंडस्ट्री को छोड़ के एक जनरल युवा होता है, उनके दिमाग में अलग अलग प्लान्स होते हैं। दे माइट हैव सेट देयर गोल्स, भाई मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, मुझे वो बनना है। मैं एक जनरलाइज क्वेश्चन पूछ रहा हूँ सर आपको कि क्या होता है कुछ जगह पे, बहुत सारे एग्जांपल भी है, उनके घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं है फिर भी आज दे आर डूइंग मिरेकल्स, बट जो एक एवरेज 3 टाइप के लोग होते हैं, एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ थोड़े से ये हो जाते हैं। तो ये जो बीच का ये है, उनको कुछ सहूलियतें होती नहीं है। तो ये इंडस्ट्री छोड़ के अगर जो जनरलाइज हम बोलते हैं ना कि भाई हाँ भाई आपको ये करो तो आपको ये हो जाएगा, जैसे आपने कहा मोबाइल ले लो, ऐप ले देखो, ये करो, दैट इज रिलेटेड टू इंडस्ट्री व्हाट यू आर डीलिंग इन। मैं ओवरऑल इंडस्ट्री के बारे में कहना चाहता हूँ कि भाई सपोज मैं हूँ, आई एम अ गुड ओरेटर, अगर मुझे इसमें मेरी करियर करनी है, बहुत सारे यूथ रहते हैं आज, उनकी लाइकिंग भी है, और आजकल जो उनके सामने फॉर एग्जाम्पल लीजिए क्रिकेट है, आज उनको उनकी फेम भी देखी जाती है, पैसा भी देखा जाता है, लेकिन वो बच्चे थोड़ा सा वो जो मेहनत उसके पीछे की है वो शायद अनदेखी करते हैं, शायद इसलिए जो सक्सेस मैंने मिस किया। आपने क्या बोला जो फेम के बारे में, क्रिकेट के बारे में बोला, उसके बाद मैंने मिस कर दिया। फॉर एग्जांपल मैंने क्रिकेट बोला कि लोगों को बोलता है अरे यार धोनी के पास फेम है, मनी है, फॉर्चून है, लेकिन उनके पीछे की जो मेहनत है, उनका जो हार्डवर्क है, व्हाट दे हैव डन, वो थोड़ा सा उनसे अनदेखा दिया जाता है। और होता क्या है, जब हम ग्रुप में बैठते हैं, अरे ये हो गया, और आजकल के पेरेंट्स क्या हो रहा है, अरे वो बन गया, तो अपने बच्चों को कम समझते हैं कई जगह पे दूसरे से कंपेयर करते हुए। तो मैं आपके थ्रू ये मैसेज दिलाना चाहता हूँ जो आज यूथ यहाँ पे अटेंड कर रहा है इसको, कि ऊपर वाले ने अलग अलग पर्सनैलिटीज बनाई है, अलग अलग स्किल्स उसको दिए। तो जो हमारा मोटो है अपील योर स्किल्स, जो आपके अंदर जो स्किल्स है उसको आप फाइंड आउट कीजिए, उसको नर्चर कीजिए और आगे बढ़ाइए। एक्सेलेंस इज नॉट फार फ्रॉम दैट। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये अगर कुछ चंद लाइनें आप उनके लिए कहें। आई थिंक जो आदमी, जैसे मैंने पहले बताया कि पहली बात ना कि आप रुकते रहोगे ना कि मेरे में हुनर क्या है, मैं ढूंढता रहूँ, उसमें 5 साल निकल जाएंगे। ओके, जैसे आप काम चालू करोगे ना, गिनोगे आपने एक झाड़ू मारना शुरू किया, आपको पता चलेगा ऑटोमेटिकली झाड़ू ऐसा नहीं ऐसा मारते। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो जैसे ही आप एक कुछ प्रैक्टिकली करना शुरू करते हैं ना, अपना खुद का हुनर आना शुरू हो जाता है। और उससे आपने वो एक एग्जांपल मैंने झाड़ू जिस तरह मारा, उसमें मेरे को और 5 आइडियाज आएगी कि नहीं यार मैं झाड़ू को मार सकता हूँ, दूसरे बदले मैंने ये मटेरियल क्यों नहीं ऐसा बना के, इस कपड़े से क्यों नहीं मारता हूँ इसके बदले। मैंने एक अलग ऑप्शन अपने माइंड में आना शुरू हो जाते हैं। मेरे में हुनर है पर मेरा ओपन माइंड नहीं है। मेरे में अगर मेरा माइंड ओपन है तो ऑटोमेटिकली मेरी हुनर दिखना शुरू हो जाएगी। जैसे मैं दिखूंगा रास्ते में, बाहर जाके ट्राई करूंगा। आई थिंक दिस फीलिंग ना कि कई लोग आपने एग्जांपल दिया कि क्रिकेटर फेम मिल गई, फॉर्च्यून मिल गया, लेकिन हार्डवर्क नोबडी सीइंग एग्जैक्टली ना। आई डोंट थिंक धोनी जब पहले दिन जब आया था खेलने नीचे तो सोचा था कि वो टीम में भी आएगा, वो तो मजा करने गया था, हो गया एंड देन ही गॉट कमिटेड, सेपरेट इश्यू, बट ही शोड कमिटमेंट ना। पहले उसने कमिटमेंट दिखाया ना, जब भी वहां था उसने कमिटमेंट दिखाया। तो आप कमिटमेंट दिखाओ ना, अगर कोई भी कमिटमेंट कुछ में भी दिखाओगे ना, आई थिंक ऑटोमेटिकली हुनर जो अपना है वो दिखना शुरू हो जाएगा। एंड इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेरेंट और द मेंटर्स अराउंड टू अलाउ चिल्ड्रन टू मेक मिस्टेक्स। आई थिंक इंडिया का एक बड़ा प्रॉब्लम है, जैसे कोई मिस्टेक करता है ना, ये अपना एक्चुअली प्रॉब्लम स्कूल से चालू होता है। अगर स्कूल में एक बच्चे को 5 मार्क्स कम आ गए ना, तो उसको घर पे बोलते हैं क्यों आए खराब मार्क्स। आई थिंक वो चेंज वहां लाने की जरूरत है। आपने जो बोला वो, अगर वो बच्चे को बोलोगे ठीक है ना, आपने वहाँ स्पोर्ट्स में वैसा किया ना, चलो वेरी गुड, नेक्स्ट टाइम वी विल स्टडी हार्ड ऑल्सो। अगर पेरेंट्स विल कीप ऑन कंपेयरिंग, आपने जैसे बोला ना कि यार उसको मिला, आई थिंक तो वी हैव टू, इट इज द चेंज हैज टू कम फ्रॉम द मेंटर और द फैमिली एंड नॉट फ्रॉम द चाइल्ड। द चाइल्ड इज ओनली अ रिफ्लेक्शन। वो तो आपकी परछाई है ना, जो आप करोगे वो करेगा। अगर आप ज्यादा चिल्लाओगे वो आपको बोलेगा ही नहीं, वो डर के कहीं और करेगा, गलत काम करेगा, आपको आके बोलेगा नहीं। मिस्टेक करने दो ना, आपको आके बोलने दो, तभी आपको भी पता चलेगा कि जमाना बदल रहा है। So I think that is how it is. I think it is up to the parents to decide this. Sir, extending my question again, related to this only. I am talking about transition now. जैसे कि आपने देखा कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन जो है
लास्ट 40 साल से है ऑर्गेनाइजेशन, ट्रांजिशन होता रहता है। लीडर्स थे, उन्होंने चालू किया, फिर नए लीडर्स बने, उन्हें देख रहे हैं, अभी नए यूथ देख रही है। संगिनीज करके हमने अलग बनाया कि जो लेडीज के लिए स्किल डेवलपमेंट उनका हो। लेकिन एक मेरा जेन्युइन क्वेश्चन ये था कि यूथ के लिए सर ट्रांजिशन होते वक्त जो होता है ना, जो ओल्ड बैच है, जैसे सपोज मैं हूं, मेरा ग्रुप है, मेरे अंदर अभी सपोज वी आर बिटवीन 40 to 50, नया जनरेशन जो ज्वाइन हो रहा है 25 to 40 है, एक जनरेशन गैप रहती है और कम्युनिकेशन गैप रहती है। करेक्ट। लेकिन जब उनको करना है, आना है, तब होता क्या है, जो सीरियस होते हैं या तो जो पहले से यहाँ पे बैठे हुए, उनका दिल नहीं मानता कि उनको फ्री हैंड दिया जाए या कुछ दिया जाए। तो मेरा क्वेश्चन ये था इसका कि यूथ ने उस वक्त पे क्या करना चाहिए, हाउ दे विल हैंडल दिस सिचुएशन एंड अचीव देयर गोल्स। So I think what I've observed is two things. Okay, assume करो मेरे ऑफिस में मेरा जो जूनियर है वो कई टाइम मुझे इंस्टाग्राम पे ऐसी कोई चीज दिखा देता है ना जो मुझे पता ही नहीं है। तो जो चीज मुझे पता ही नहीं है मैं उसमें इंटरफेयर करूँ, मैं तो इंटरफेयर कर ही नहीं सकता हूँ। बट सडनली आई गेट कॉन्फिडेंस इन द यंग मैन, यार अच्छा इसको पता है, चल ना इसको मैं बोलता हूँ एक और काम कर ले तू। सो आई थिंक दैट मेंटरिंग हैज टू कम समवेयर इन इंडिया ना। अपना प्रॉब्लम है वी डोंट वांट टू लेट गो ऑफ कंट्रोल। And I think globally, if you see, the companies which made it big have given control to their managers, to their assistants or whatever. अपने को यहाँ छूटता नहीं है क्योंकि अपने को बचपन से सिखाया कि अपने को खुद को करना है हर एक चीज। तो करो ना खुद, लेकिन give other people opportunities. And two is give them. अभी जैसा बोले जैन सोशल ग्रुप is the first meeting on Zoom, so which is very interesting. Somebody has taken the initiative. Somebody has managed. Jayati and other people, other youth would have decided how to go about it. तो आपका काम हो गया फिर मार्गदर्शन का कि मुझे जूम पे मीटिंग करनी है, आप इसमें इतने लोगों को बुलाना है, आप बाकी आप प्लानिंग कर लो। आई थिंक नाउ नेक्स्ट टाइम यू विल हैव मोर कॉन्फिडेंस ऑन दिस पीपल। आई थिंक इफ द ओल्डर पीपल अलाउ मेकिंग मिस्टेक्स एंड स्टैंड बाय एंड मेंटर द यूथ कि भाई अच्छा ठीक है मिस्टेक होने वाला है, मैंने भी किया था, तो आई थिंक द ट्रांजिशन विल हैपन एंड द यूथ विल आल्सो हैव टू टेक द इनिशिएटिव कि उन लोग जो सीनियर्स हैं उनको दिखाया कि सर मैं एक और करके दिखाऊं। आप बोल रहे हो ऐसा होता है, मैं बोल रहा हूँ एक आपका ऑप्शन ले लेता हूँ, एक मेरा ऑप्शन ले लेता हूँ, आप दोनों देख लो, फिर आप ले लो जो जमे। बाय द थर्ड टाइम वही सीनियर बोलेगा ठीक है ना, आप अपने ऑप्शन से कर लो। आई थिंक बोथ द साइड विल हैव टू हैव दिस ओपन माइंड कि यार ये बूढ़ा है, ये सुनने वाला नहीं है, और वो नहीं करेगा तो ये होने वाला ही नहीं है। आई थिंक बोथ द साइड विल हैव टू गो मिडवे एंड मीट। सर थैंक यू वेरी मच। मैं आपके थ्रू, आपके जरिए मैं ये कन्वे यूथ को करना वही चाहता था कि हाउ यू विल हैंडल द सिचुएशंस। क्या होता है, हम रोज टू रोज मिलते रहते तो अपने अपनी ओपिनियंस बन जाती, लेकिन जब कोई आपके जैसा इमिनेंट स्पीकर कहता है कि भाई ये चीजें आपको ट्राई आउट करनी चाहिए, तो यूथ को इसका बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। सर मैं 2 साल इस यूथ फोरम पे हूँ और मैं आपको रिक्वेस्ट भी करूंगा कि बार बार आपको हम तकलीफ भी देंगे ताकि हमारे युवाओं का आपका जो गाइडेंस है वो मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर द क्वेश्चन। Thank you so much. To you. Hello, I have a question. Can I ask? Yeah, please go ahead. Yeah, Jai Jinendra or everyone. Myself Tanvi Valtra from Nashik. So sir, मेरा question ये था, how to improve emotional intelligence and self-confidence. Emotional intelligence. And self-confidence. So I think the way to improve emotional, first of all, the way to improve self-confidence is to meet people who understand you, okay, and that will also affect emotionally. If self-confidence is something which is hurting you, say I am not a psychologist, so my answer may not be exact, but what I would do if I was in your place, if I am talking of it, is first of all I will meet people who don't run me down. अगर मेरे आजू बाजू में मेरे दोस्त हैं जो मुझे मेरा मजाक उड़ाते हैं आखिर टाइम, तो फिर मेरा कॉन्फिडेंस कम ही होने वाला है ना। आई नीड टू फाइंड माई फ्रेंड्स हु आर लाइक मी, हु अंडरस्टैंड मी एंड हु विल सपोर्ट मी रादर देन रन मी डाउन। जैसे ही आपको ऐसे दोस्त मिलेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि जो 100 चीज में से 25 चीज वो करता है, बाकी आप में भी 25 चीजें जो उसे पता ही नहीं है। तो आप ऐसे दोस्त ढूंढो जो आपकी 25 चीजें ढूंढ पाए वो साथ में। एंड आई थिंक व्हेन इट कम्स टू इमोशनल इंटेलिजेंस, आई थिंक EQ or IT, I put it that one is intelligence, and emotional intelligence will only grow the moment you have confidence. And if you have confidence and you know that the world is not the perfect place, so you will automatically be able to
Restrict your emotions where you need and use your emotions where you need. Yeah, thank you, sir. Welcome. Yeah, the next question, I guess Siddesh has raised the hand. So please, can you go ahead with your question? Yes, ma'am. Thank you. Hello, sir. Siddesh here. Sir, I'm planning to pursue engineering and I wish to learn vocational skills, but it's very tough to manage time because the syllabus is vast. So how can I do that? अरे engineering में क्या syllabus बात? मैं भी engineer हूँ यार. No, sir. Actually, it's like. Which college? कौन से college से हो? Sir, I'm planning, sir, from MIT, sir. Just finished my 12th. MIT Pune? Yes, Pune. हाँ तो अभी तूने चालू नहीं किया ना. Once you go into engineering, you will find कि बहुत टाइम होता है. मस्ती भी कर पाओगे, कल्चरल एक्टिविटी कर पाओगे, हर एक चीज कर पाओगे. आपको मालूम है जितने दूसरे वोकेशंस है, स्टैंड अप कॉमेडियंस, इंजीनियर्स, ओके? यस सर. आप देखोगे कि इंजीनियर्स क्यों ये सब चीजें करते हैं, उनको टाइम ही टाइम है उधर. 3-4 घंटा पढ़ना है. मेरा लड़का भी इंजीनियर है, मैं भी इंजीनियर. कोई टेंशन नहीं है, आपको जो वोकेशन करना है करो, बट आई थिंक यू मस्ट फाइंड टाइम ड्यूरिंग योर इंजीनियरिंग टू एंजॉय. इंजीनियरिंग जैसा कोई कॉर्स ही नहीं है दुनिया में, बिकॉज इंजीनियरिंग का मतलब क्या मालूम है, पब्लिक समझता नहीं है. इंजीनियरिंग मींस सॉल्विंग प्रॉब्लम्स. ओके. इफ यू नोबडी एक्सप्लेन्स. मैं जब पढ़ रहा था मुझे किसी समझा ही नहीं कि इंजीनियरिंग होता क्या है. सो इंजीनियरिंग इज, मैं मैकेनिकल करूँ, कंप्यूटर करूँ, सिविल करूँ, उनका एक ही काम है कि आपको एक सामने प्रॉब्लम आया, उसको सॉल्व कैसे करना है. अगर रास्ते में खड्डा आया तो उसको भरना है, अगर नदी आई तो उस पर ब्रिज बनाना है. दैट इज व्हाट दे टीच यू, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स. सो ऑटोमेटिकली व्हेन यू गो इनटू इंजीनियरिंग, आप थोड़ा पढ़ोगे और शाम को बेलागिरी करोगे ना, तभी वोकेशन कर लेना अपना, कोई टेंशन नहीं है. नो एक्चुअली सर, मेरा जो मैं जो कोर्स ऑप्ट करने वाला हूँ सर, उसमें 3 इंजीनियरिंग का कंबाइंड रहता है. सो इट्स तो सिलेबस थोड़ा मतलब रहता है रेगुलर इंजीनियरिंग से ज्यादा, इसलिए मैं थोड़ा सा पूछ रहा था. मेकाट्रॉनिक्स. हाँ, मेरे को मालूम है मेकाट्रॉनिक्स में. आई हैव स्टडीड मेकाट्रॉनिक्स. आई हैव अंडरस्टूड मेकाट्रॉनिक्स इज 60% इलेक्ट्रॉनिक्स, 40% मैकेनिकल. मैकेनिकल, या राइट. तो बट अल्टीमेटली 8 सेमेस्टर है, तो अगर सब्जेक्ट उतने ही क्या करने वाले, 3 सब्जेक्ट वहां कम होंगे, 3 सब्जेक्ट बढ़ेंगे. आई एम टेलिंग यू, इंजीनियरिंग में आप जब निकलोगे ना, यू विल नॉट हैव इवन 30% नॉलेज. वो नॉलेज आपको जाके जब आप सही एटीट्यूड दिखाना इंजीनियरिंग में, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करना, अपने कॉलेज के जो इवेंट्स है उसमें पार्ट लेना, ओके, दैट विल मेक यू अ कंप्लीट ह्यूमन बीइंग. एंड व्हेन यू स्टेप आउट ऑफ इंजीनियरिंग ना, you will automatically get hired because of not your engineering skills, because of your attitude. And vocation तो सीख ही सकते हो. So I'm saying take part in everything. I'm telling you, whether you're doing mechatronics or anything, ना, there's no stress. Okay, वो 8 semester ही है, उसमें everything is good fun. Don't worry. Okay, thank you so much, sir. Welcome. Pranali, you also raised the hand, so please can you go ahead with your question? Yes. जय श्रीनेन्द्र अंकल. हाय. हेलो अंकल. हाय. मैं ये पूछना चाहती हूँ अंकल कि सेल्फ मोटिवेशन के लिए आप क्या बता सकते हो? सेल्फ मोटिवेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर कॉलिंग मी अंकल एंड यू आर डीमोटिवेटिंग मी. ओके. ओके. So now I have to self motivate myself by saying that Pranali, take it this comment, क्योंकि तुम सबको अंकल अंकल कहती रहती हो. अंकल बोलते तो एक अपना सा लगता है. ऐसे भी जी बोलोगे तो भी अपना सा ही लगेगा. Exactly. So anyway, I'm now self motivating myself. So जब भी मेरा मूड खराब होता है, I'm telling you myself. Okay, everybody goes through these phases of demotivation and unhappiness. तो I like to go jogging. जब मैं जॉगिंग करने जाता हूँ ना, तो मेरा मूड ऐसे ही ठीक हो जाता है. तो आपको क्या शौक है? म्यूजिक का शौक है? You must be having some hobby ना? Yes. हाँ, तो वो दिन छुट्टी लेने का, हॉबी करने का, वो दिन कोई फर्क नहीं पड़ता है. 3 घंटे में मूड ऐसे हो जाएगा ना, ठीक. सब पिक्चर देखो ना, और पिक्चर ऐसा देखने का 3 इडियट्स जैसा. डोंट सी सम सैड मूवी, देख देवदास, तो ऐसे ही मूड आ जाएगा, मोटिवेशन ऐसे ही आ जाएगा. See, self-motivation, all this now is on a serious note. We can either live in self-pity or we can self-motivate. Self-pity में रहोगे तो कोई आपको 3 दिन हेल्प करेगा, चौथे दिन भाग जाएगा, बोलेगा रोज रोती रहती है. So I think we have to do what you like. Sometimes it's okay to not make the world happy. You make yourself happy, automatically the world will be happy with you. Actually जो comparison होता है ना, तो वो
क्या होता है कि कुछ टाइम पे मोटिवेशन चला जाता है कि समटाइम्स लगता है कि नहीं मैं करूंगी, बट कभी लगता है कि इतना कंपटीशन है, मैं कर तो पाऊंगी, तो वो जो मोटिवेशन ऐसा। अच्छा, आप क्या पढ़ते हो? मैं लॉ कर रही हूँ। तो लॉ में एडमिशन इजी है? यस यस, तो सी यू गॉट इट इजीली। आपका पहले तो सेल्फ मोटिवेशन वो होना चाहिए, यू गॉट इन लॉ इजीली। एंड आई थिंक दिस, सी इंडिया एज अ कंट्री ना इज मोर सप्लाई देन डिमांड। तो ये चैलेंज तो अपने को रहेगा ही। मैंने इंजीनियरिंग किया, मेरे को भी ये सेम चैलेंजेस है। आई एम श्योर जयती या जितने लोग यहाँ बैठे हैं ना, सबके वही चैलेंज है कि आगे जाके होगा क्या। बट एट द सेम टाइम, अगर if you're saying that I have a challenge in front of me and people are comparing me, तो आप भी एक अपना लिस्ट बनाओ कि I am good at this, I am good at this, I am good at this, सामने वाला is good at this or no। एंड अगर सामने की 5 खूबियाँ अच्छी है और आपकी दूसरी 5 खूबियाँ अच्छी है, बोलो साथ में बैठते ना, शेयर करते ना, कोऑपरेट टू डोमिनेट, दैट इज द आइडिया। या राइट, थैंक यू अंकल। अगेन यू सेड अंकल, ठीक है चलेगा। ओके सर। प्रणाली फिर अंकल। Yes, sir. Yes, sir. Thank you, ma'am. Okay, thank you. Jayati, Karen. Yes, sir. Yes, sir. Rumit Gandhi, please can you go with your question? Yes. Hello, good evening, sir. Hi, Rumit. Hi, sir. मैं अभी VFX आर्टिस्ट का कोर्स कर रहा हूँ। VFX? हाँ। और अभी ऑनलाइन चालू है, तो इट्स नॉट वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ। तो साइड में मैं क्या कर सकता हूँ उसके साथ ऐसे? So you're saying you're doing visual effects, ना? VFX? Yes. So first of all, let me tell you, you're in a beautiful industry. VFX is the way of the future. जो भी फिल्में बनती है ना या टेलीविजन में, VFX will become very very big. And people like you will always be on every set. So एक तो आपका फ्यूचर सिक्योर है। Now let's come back to how to do time pass now. So what you should do is you can upgrade your VFX skills sitting at home or around your place. Are you aware that online there are apps which will allow you to go green screen and do VFX? You are aware, right? Yes. So why don't you do some experiments of VFX where आप घर पे ट्राई करो ग्रीन स्क्रीन लेके या ब्लैक क्लॉथ लेके, या हाउ टू मेक स्टार्स, हाउ टू क्रिएट डिफरेंट एनवायरनमेंट्स विद इन द सेम स्पेस। You can do in your free time. Automatically, when you read about VFX and you apply it in principle, you will realize that I've got a lot of free time which I'm using for the right things. So I think that's what you should do. I think VFX is a very beautiful field. बहुत opportunities है अभी तो। ओके। और अभी मैं फिलहाल मतलब ऐसे साइड में फोटोग्राफी भी कर रहा हूँ। ओके, सुपर। सो मतलब ऐसा कुछ और मतलब उस रिलेटेड कुछ हो सकता है, मतलब कुछ ऐसे नया ट्राई करने के लिए? So have you tried virtual reality? Okay, ट्राई करो virtual reality 360 डिग्री शूटिंग। वो छोड़ो, वो नहीं करना है तो डू ऑगमेंटेड रियलिटी। AR का सॉफ्टवेयर है where you can experiment कि आपके घर में अगर आपने एक खाली घर पड़ा है और आपको वो डेकोरेट करना है विदाउट एनीथिंग, यू कैन क्रिएट अ फुल आर्किटेक्चरल प्लान विदाउट हैविंग आर्किटेक्चरल नॉलेज। आप टेबल जहाँ चाहे वहाँ रख सकते हो ऑडियंस को दिखाने के लिए। आप ऐसा कुछ डेवलप करो ना, ताकि व्हाट इज द फैमिली बिजनेस और व्हाट इज द फैमिली डू? व्हाट सर? आपकी फैमिली क्या करती है? सर बिजनेस है, स्टेशनरी सप्लाई का। स्टेशनरी सप्लाई का है ना? सो आई एम अज्यूमिंग होलसेल या रिटेल? होलसेल। So I am saying that why can't you create something like an app with VFX where people are able to see what type of stationery is being selling? And why don't you go in that route and help the family? You have online presence? आप online हो? नहीं, तो नहीं हो सर। Do that ना। मैंने अभी बताया ना, Spotify में दुकान खोलो यार। You can start selling online. Okay. So I mean saying, I'm just giving example. You can do something else. I'm just saying opportunities are many, but you are saying since you want to keep time, ये करना है तो करो ना। फोटोग्राफी आप कर रहे हो, VFX कर रहे हो, ट्राई टू हेल्प द फैमिली, दे विल आल्सो बी हैप्पी। ये लड़का VFX में कुछ ना कुछ करेगा आगे जाके। यस सर। या थैंक यू सर। यू वेलकम। Isha Karnawat, can you go please ahead with your question? Isha?
Yes. Am I audible? Yeah, Isha. Yes, Jai Jinendra uncle. This is Isha Karnad from Solapur, Maharashtra, Yuva Forum. Okay. Actually, I wanted to ask you one question. As I'm doing IT engineering currently in the third year, I am from WIT College, Solapur. You might be knowing. So as I'm IT, nowadays our colleges are like telling us to perform all the courses like EDS, Python and Infosys Head Start, NPTEL. Is this all really very important to do for the placement? Okay, so first of all, I like Solapur because I love the Solapur chadar. Nice. मिलती है ना actually वहीं कहीं ना? Yes. This is my favorite chadar. I find it very convenient, and my wife always makes fun of me when I use the Solapur chadar. She likes the softer one. So anyway, coming back to what you're doing, see, I think it's a cliched answer, but no knowledge is wasted. A. B is if you're doing Python or you're doing any of the software, software will keep on changing, okay? But the foundation will always be the same. So once you understand one software, as I said, evolution to hota rahega, but ultimately you are just improvising and putting one more layer on the. So I think all these software, I don't know how much it's costing you. If it's too expensive, you may skip. But otherwise, it is totally worthwhile to do these things because they have done as compulsory. Like I have completed my 7th level of NPTEL exams. And because of this COVID, जो हम last year तक 1 year में 1 देते थे, अभी 1 साल में हम लोगों ने 3 NPTEL me have completed all 3 levels of NPTELs. They are like, it is important for your placements and all. So do it and all. They're telling us like this. So coding, does it mean also include coding and all? Yeah, coding, right. Coding is so important today. If you just say you're a coder, आपको ऐसे नौकरी मिल जाएगी. So it's a very important area. Yes, I have completed my C++, Python, and currently I'm learning Power BI also. So no harm in doing this. It's a beautiful thing to do. You don't worry. Yes. And I think it's see, all these things you would have not done on your own ever. Okay. हम लोग engineering ना ऐसे ही निकल जाते हैं. ये अच्छा है उन्होंने धक्का मार दिया आपको और ये सब दे दिया. I think do it now. What is the harm? By the time you're out of college, you will be a valuable commodity. Yeah. Yes. Thank you. Okay. Thank you. Thank you, Isha. Thank you. Now, any further questions, anyone? I'm not able to see any queries raised. Okay. Ashish sir. I think it's enough one. We are running out of time now. Yes. It's 5:30 now. So now I request और किसी को कुछ पूछना है? मैं पूरे फोरम को पूछना चाहता हूं. हेलो, जो प्रेजेंट मेंबर्स है, मैं सबको पूछना चाहता हूं. और कोई क्वेश्चन, क्वेरीज? तेजस भाई को आप कुछ और तकलीफ देना चाहेंगे? कुछ पूछना चाहेंगे उनसे? ओके, नाउ वी आर कंटिन्यूइंग आवर proceedings. Thank you so much, Tejas ji, for giving your valuable time. And now we proceed towards our next session of the program. Now I request Hardik Bafna, na? Yes. Hardik Bafna to give vote of thanks. Jai Jinendra, everyone. Am I audible to everyone? Yes, you are audible, Hardik. Jai Jinendra. As we express our gratitude, we must never forget that the highest appreciation is not to utter words, but to live by them. I, Hardik Bafna, PRO, Yuva Forum, Platinum Nandurbar, would like to take this opportunity to say thank you to all our dignitaries. JSGN Biren Shah sir, International Director, JSGIF from Pune. JSGN Mahavir Parekh sir, International Director, JSGIF from Bijapur. JSGN Manish Shah sir, International Director from JSGIF from Pune. JSGN Sachin Shah sir, MRC Chairman from Nashik. JSGN Unmesh Karnawat sir, MRC Chairman elect from Solapur. JSGN Hasmukh Jain sir,
MRC Vice Chairman from Pune. JSGN Pritish Tated Sir, MRC Vice Chairman from Malegaon. JSGN Dilip Mehta Sir, MRC Vice Chairman from Pune. JSGN Amol Javeri Sir, MRC Secretary from Pune. JSGN Sachin Doshi Sir, MRC Joint Secretary from Satara. JSGN Dilip Chorvele Sir, MRC Joint Secretary from Pune. JSGN Ketan Doshi Sir, MRC Treasurer from Gulbarga. JSGN Ashish Kumar Shah Sir, MRC Yuva Forum Chairman and Vice Zone Coordinator, Pune Zone from Pune. JSGN Yuvraj Shah Sir, Yuva Forum Committee Chairman, JSGIF and Zone Coordinator for Pune Zone from Pune. JSGN Rajendra Sisodia Sir, Zone Coordinator, Aurangabad Malegaon Zone from Dhule. JSGN Sunit Parekh Sir, Zone Coordinator for Kolhapur Zone from Kolhapur. JSGN Rajendra Sanghvi Sir, Zone Coordinator Solapur Bijapur Zone from Bijapur. JSGN Sumit Patwa Sir, Zone Coordinator Nasik Zone from Nasik. JSGN Pinal Shah Ma'am, President Platinum Nandurbar from Nandurbar. And the one without whose support and help this event would not have been success. JSGN Kalpesh Desai Sir, B2B Chairman from JSGIF, Maharashtra Region Committee and Pune Zone. Sir, thank you. Sir, thank you for all your technical support and that you have given to us. Also, I would like to give special thanks to our own MRC Yuva Forum Chairman, JSGN Ashish Kumar Shah Sir, for his support, time and help he has given to us. I would like to thank all our guest speakers, our guest speaker, Mr. Tejas Shah Sir. Thank you for taking out your precious time to enlighten us and giving us knowledge that we really needed in this time. I would like to thank all the presidents, secretaries, treasurers and members of JSGIF, Maharashtra region and all our audience of the day. Before ending my vote of thanks, I would like to say a few lines for everyone. कैसे करें धन्यवाद आप सभी का अल्फाज नहीं मिलते. कैसे करें धन्यवाद आप सभी का अल्फाज नहीं मिलते. यह प्रोग्राम सफल ना होता जो आप जैसे दर्शक ना मिलते. ये सब प्रोग्राम सफल ना होता जो आप जैसे दर्शक ना मिलते. क्या बात है हार्दिक, एक नंबर हार्दिक, एक नंबर हार्दिक, बढ़िया. कंटिन्यू हार्दिक. Sorry sir. I think he's done. He's done. Yes, Hardik एक नंबर, मस्त. जयती बहुत. Very good. आशीष भाई, good आशीष भाई. Yeah, thank you sir. Yes. Thank you so much. Are we good to conclude, Ashish bhai, Jayati and team? Once again, I just want to say a few words, Kalpesh bhai. After that, you can conclude this meet. First of all, I would like to thank Mr. Tejas bhai. Sir, आपके विचार जो आपने दिए हैं हमें, उस पर ये यूथ जरूर अमल करेगा. मैं मेरे सभी साथी जो JSG से हैं, मैं उन सब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं. आपके वक्त से, आपका अनमोल वक्त हमारे लिए कीमती है, उसमें से वक्त दे के आपने अटेंड किया. डेफिनेटली जो ऑडियंस है, जो ज्वाइन हुआ युवा, उनको मैं वापस हार्दिक बधाइयां देता हूं कि ऐसे टॉपिक्स बहुत कम मिलते हैं और ऐसे स्पीकर्स हमें बहुत कम मिलते हैं. और big fat thank you to Jayati. You are doing a fantastic and wonderful job, Jayati. Sky is the only limit for you. Wishing you all the best and thank you everyone. Thank you Sachin bhai for your kind support. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you. Kalpesh bhai. Bye everybody. Bye. Bye.